Okay. Hi. Hello. I think start हो गया live. Hey. Hi Monu, I'm good. How about you? Hi Mayur, हाँ आस्था। कैसे हो? बस ठीक हो। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज कम आ रही है मेरी? आप बराबर आ रही है। Okay, okay. Yes. यस, टेल मी। So how is Goa? गोवा इज गुड। How is Sukriti? हाँ। So nothing. I was just saying hi to people who are ओके writing. So it ओके। was unannounced live आज का, तो हमने कुछ हम्म। स्टोरी पोस्ट नहीं करा था. ट्रू। But let's see who all joins. Surprise हम्म। live. And today we are talking about Kerala, na? राइट। केरला। Hmm. Okay. So I have been to Kerala, but I was young जब मैं केरला गई थी और मुझे बहुत ओके। कुछ नहीं पता. आप हमें बताने वाले हो क्या क्या प्लेसेस हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए है वहाँ पे. Kerala is it is a state which has a lot to offer. Means it has beaches, it has, you can say, backwaters, it has hill stations, it has wildlife sanctuaries. So काफी कुछ है. It has cultural places, it has good temples. So it is a state that has almost everything, and as they say, like it's God's own country. It's that kind of sort. Hmm. Right. So That is, I yeah, think वहाँ का स्लोगन यही है ना केरला का. हाँ, केरला का स्लोगन यही है. इट इज द स्लोगन फॉर द ऑफिशियल केरला टूरिज्म. केरला टूरिज्म. पहले वो ऐसा होता था कि इट वाज अ विंटर डेस्टिनेशन, बट नाउ केरला हैज बिकम अ 12-month डेस्टिनेशन. 12-month destination. Okay. Yes. So each time has its own charm. During summers, people generally visit hill stations in Kerala like Munnar, Thekedi. Then you have new upcoming hill stations like Ponmudi. Then you have Wayanad, which is fantastic. So there are other places like Tattekad. It's a bird sanctuary near Munnar. A place called as Marayur near Munnar is getting developed. So quite a lot of hill stations coming up in Kerala also now. In monsoons, people like to Munnar visit the and Alleppey are backwaters. already famous, है ना? Asta, I'm not able to hear you. मुनार और एलेप्पी तो ऑलरेडी बहुत फेमस. Hello. आई एम सेइंग मुनार और एलेप्पी तो ऑलरेडी बहुत फेमस है. हाँ, Munnar is famous, but now what has happened is people getting into these offbeat tourism kind of sorts. तो मुन्नार के यहाँ पे थत्तेकड़ नाम का एक बर्ड सैंक्चुरी है. So people have started visiting थत्तेकड़. Then people have also started visiting a place called as Bison Valley, which is near Munnar. So वहाँ पे जाते हैं. बाइसन वाली. अच्छा. कुंडला कुंडला करके एक जगह है, वहाँ पे जाते हैं. अच्छा. तो Kundala is a beautiful lake. It has Kundala basically has a first arch dam. अच्छा. First arch dam in Asia is built in Kundala. अच्छा. A small video on Kundala is there on our YouTube channel. Global Nomads का YouTube channel है. उस पे एक 2.5 मिनट का कुंडला का वीडियो है. That is exclusively for Kundala. So you can see the अच्छा. views of Kundala in that video. तो क्या है कुंडला में अपार्ट फ्रॉम आर्च डैम? कुंडला इज बेसिकली अ हिल स्टेशन. वहाँ पे दो चीजें हैं. चेरी ब्लॉसम्स नाम का एक फ्लावर होता है. अच्छा. सो चेरी ब्लॉसम्स वहाँ पे 2 बार ब्लॉसम होते हैं साल में, हम्म. कुंडला हिल्स में. दूसरा ऐसा है कि देयर इज दिस फ्लावर कॉल्ड एज नीला कुरिंजी. ओके. इट ब्लॉसम्स वंस इन 12 years. 12 साल वंस. में एक बार वो. 12 years, 12 साल में एक बार ब्लॉसम होता है. तो लास्ट ईयर 2019 वॉज दैट पर्टिकुलर ईयर. ओके. ऐसा है. सो अभी डायरेक्टली वो 2031 में ब्लॉसम होगा.
my God. So that area around Kundala is basically that particular area for Neela Kurinji. So that is famous, and a lot of movie shootings are done in Kundala because the lake is nice. The, I can say, forest around the lake is also really nice. So a lot of South Indian as well as some Hindi movies. Exactly is Kundala located? Kundala is around, you can say, from main Munnar town, around 10 kilometers from main Munnar town. Okay, okay, okay. So it's very close to Munnar. So Yes, absolutely, Munnar absolutely. and Munnar definitely they can visit. इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बिकॉज मैंने जब बीच में ऐसा था कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने कुंडला का फोटो डाला था तो पहले मैंने ऐसे ही स्टोरी पे डाल दिया और पूछा गेस द प्लेस सो अ लॉट ऑफ पीपल रिप्लाइड मी दैट इज इट ऑस्ट्रिया Okay. सो इट इज दैट ब्यूटीफुल बेसिकली Okay. Nice. प्लस Nice. उसके बाद में थेक्कड़ी है थेक्कड़ी इज अ वेरी फेमस प्लेस इट इज बेसिकली इट कम्स अंडर द पेरियार टाइगर रिजर्व it is Periyar is under the Project Tiger, which was started in 1972 by Indira Gandhi in different locations to increase the tiger population. So Periyar is a tiger reserve. जो it is one of the Project Tigers, and government of Kerala organizes boat tours in the sanctuary. Plus there are also jungle safaris that are organized, but nowadays you can't go in the core area by the jeep. So buffer area में jungle safaris होते हैं. So boat tour जो है बोट है वो कोर एरिया से जो पेरियार लेक है जो पूरा फैला हुआ है तो वहां पे वो बोट टूर्स होते हैं एंड वहां पे एक और चीज है कि तो जहां से ये sanctuary बसेस निकलते हैं tours सैंक्चुरी के अंदर 2 घंटे का बोट राइड होता है और कैसा यू हैव टू टेक यू कैन टेक योर ओन व्हीकल अप टू द पार्किंग एरिया वहां से उनका बस में बैठ के आपको बोटिंग पॉइंट तक जाना पड़ता है अच्छा तो एक और चीज अच्छी बात यहाँ पे ऐसी है कि जहाँ पे वो बस पॉइंट है वहां पे 2 सेंटर्स भी है परफॉर्मिंग आर्ट्स के सेंटर्स है वहां पे एक कलरीपयट्टू का और एक है वो कथकली का अच्छा so you can enjoy कलरीपयट्टू शो एंड कथकली शो इन दैट परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर तो वो भी आप वहां पे बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो एंड द टिकट इज नॉट मच 150 रुपीज के आसपास का टिकट है सो इट इज द शोज आर टोटली वर्थ इट ओके कलरी जो कलरी शो है वो बहुत बहुत बढ़िया होता है एंड यू ऑल्सो गेट टू पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर शो so they call for volunteers for some of their acts so you can actually acrobats also so you can actually participate in that particular show for Kalaripayattu बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है स्किल्ड पीपल सो दैट इज देयर तो आप थेक्कड़ी में ये कर सकते हो देन आलपी इज देयर फॉर बैकवाटर्स बेसिकली बैकवाटर्स केरला में 3-4 जगह पे है एक जो सबसे फेमस है दैट इज आलपी देन इट्स कुमरकोम आलपी एंड कुमरकोम एक लेक है वेम्बनाड नाम का एक वेम्बनाड नाम का लेक है जो बहुत बड़ा है जो यस हाउस बोट्स भी है वहां पे और लोगों को मालूम है वेम्बनाड सिर्फ आलपी के यहाँ पे न होता वेम्बनाड लेक स्टार्ट फ्रॉम द सदर्न कोची से स्टार्ट होता है और वो जाता है कुमरकोम तक सो यू कैन हैव माने अगर आपको कोची से कुमरकोम भी हाउस बोट में जाना है सो दैट फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल ओके वैसा है सो वेम्बनाड में बैकवाटर्स है एक साइड का वेम्बनाड पे आलपी आता है दूसरा साइड में कुमरकोम आता है इंडियंस जनरली प्रिफर आलपी फॉरेनर्स प्रिफर कुमरकोम why so कुमरकोम बेसिकली हैज अ लॉट ऑफ वी कैन से अप मार्केट होटल्स जो नॉर्मल 2 and 3 स्टार होटल्स है वो ज्यादातर आलपी में है कुमरकोम इज मोर ऑफ यू कैन से 4 and 5 स्टार प्रॉपर्टीज okay सो जैसा गोवा में बैकपैकर फॉरेनर क्राउड आता है उस हिसाब से केरला डजंट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ अ बैकपैकर इनबाउंड क्राउड इनबाउंड जो केरला में आता है वो दैट इज बेसिकली एन अप मार्केट इनबाउंड क्राउड जो केरला में सबसे ज्यादा आता है सो दे हैव सर्टेन दीज पीपल हैव सर्टेन डेस्टिनेशंस दैट they visit Kochi then they major foreigners do not visit Munnar I actually don't know why
but it might be because they have a lot of cold places in their countries. Munnar is really popular in India. Like people, all Indians definitely visit Munnar, Abs- LFP, or Absolutely, absolutely. लेकिन foreigners नहीं visit करते वहाँ पे. So foreigners directly go to Thekkady for tigers or wildlife, and Thekkady. from there they go to Kumarakom for backwaters. They like to laze around the backwaters. कुमरकोम में काफी सारे रिसोर्ट्स हैं. उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बनाए हैं कि there is a pool that actually goes around every room. हर रूम के बाजू से पूल जाता है. So you can just आप दरवाजा खोलो और पूल में कूदी लगा दो, and you can swim in the pool. This is how it is. I mean, there is this place called as Kumarakom Lake Resort. You can check it out on the internet. Anybody is interested in going to 5-star hotels in Kumarakom, it is one of the premier and fantastic properties in Kumarakom. Okay. That's So nothing. वो है. And I have seen there Yeah. are resorts like Taj. मतलब I've Taj been is fan. that, Alapi में ताज में जो मतलब पीछे पूरा बैक वाटर्स और जैसे उन्होंने पूरा डेवलप absolutely. एंड इवन दे हैव मसाज केरला इज फेमस फॉर ऑल द Yes, Ayurvedic massage and those massages are really good. सो इट्स पॉपुलर फॉर हीलिंग आल्सो मतलब बहुत आई Absolutely. डोंट नो द वर्ड्स क्या होते हैं उसके बट मैंने सुना है कि मतलब बहुत सारे आयुर्वेदिक और कुछ हीलिंग थेरेपीज तंत्रास पता नहीं क्या बहुत थेरेपीज होते हैं वहां पे, अलग अलग टाइप के होते हैं. देर आर दो रिसोर्ट्स है वो बहुत फेमस है इस चीज के लिए. वन इज सोमथीरम एंड वन इज मनथीरम. सो ये बहुत फेमस रिसोर्ट्स है वहां पे जहां पे आप जाके दे हैव 7-day कोर्सेज, दे हैव 14-day कोर्सेज, दे हैव 21-day कोर्सेज एंड दे हैव 1-month कोर्सेज. ऐसा अलग अलग उनके प्रोग्राम डिजाइंड है और उस हिसाब से वो थेरेपीज के हिसाब से वो कोर्सेज है. बहुत उसमें हीलिंग भी होता है आपका, माने रिजुविनेशन भी होता है. So they have different kinds of packages, and along with that, every small hotel, right from a basic stay facility, even a homestay से लेके a normal lodge से लेके आपको 4-star 5-star तक local Kerala massage आपको करवाना है. Ayurvedic proper Kerala style massage, authentic Kerala massage. You can just speak to the owner. Means they can arrange that, and it is really very nice. Means a lot of hotels have a small room which is equipped with the wooden plank on which you actually sleep and you get the massage done and you get the therapies done. तो हर एक ऑलमोस्ट 75% स्टे फैसिलिटीज में ये मसाज रूम ऑटोमेटिकली होता ही है. एंड दे हैव स्किल्ड पीपल बेसिकली हु आर मींस हुज फैमिलीज आर इनटू दिस केरला आयुर्वेदिक मसाजेस फॉर जनरेशंस. हीलिंग्स और मसाजेस में जनरेशन से है, 4th जनरेशन 5th जनरेशन ये कर रहे हैं. इतना इट्स लाइक अ फैमिली ट्रेडिशन टू देम. ऐसे काफी लोग हैं. सो इट्स अ रियली नाइस. like just not the massage but they have the techniques and therapies जैसे यहाँ Absolutely. पे भी केरला Absolutely. उसमें they have these things की मतलब if you are insomniac, if you have any issues like मतलब कुछ body में कोई problem है या कोई disease Absolutely. और करते हैं वो सारे treatments. Yes. आफ्टर मसाज देयर इज अ थिंग जिसमें वो ऐसे कुछ ऑयल का कुछ मतलब ऐसे तेल का धार बना के ऐसे डालते हैं. Yes, absolutely. Those are different kind of kriyas that they do, and means they heal you. The healing kriyas also. Then there are normal means they have a complete package. They have different programs. They have different programs for different activities. Different अगर आपको किडनी का इशू है या आपको इंटेस्टाइन का ये है, so it depends on all different techniques that they have और healing techniques that they have जो उन लोग यूज करते हैं. और अलग अलग पैकेज 2 घंटे से लेके 1 महीने तक अलग अलग उनके रिजुविनेशन पैकेजेस भी है. कोई बोल रहा है आपने बहुत मसाज करवाया है वहां जाके. नहीं प्रेम, आई हैव नॉट डन. हाँ एक बार लिया था. इट वाज रियली नाइस. इट वाज कैन से अरोमा थेरेपी का ये था एंड इट वाज बेसिकली फॉर द स्टमक. तो स्टमक का नॉर्मल ये होने के लिए बेसिकली फॉर द बाल मूवमेंट्स उसके लिए नॉर्मल होने के लिए उन्होंने एक स्टमक पे मसाज कराया था और इट वाज अ यू कैन से 45 मिनट काइंड ऑफ सो. इट वाज फैंटास्टिक. इट हेल्प मी अ लॉट. काफी ये हुआ. और उसके साथ में वो कुछ आयुर्वेदिक क्रियाज भी सजेस्ट करते हैं. लाइक यू कैन से यू हैव जलनीति दैट दे आस्क यू टू डू, दैट इज ऑन योर नॉस्ट्रल्स. फिर काफी अलग अलग है इन टाइम पे. कुंडलिनी
मतलब हाँ काफी शुद्ध, सारे। सो काफी कुंडलिनी एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द मेडिटेशन थिंग। अगर आप 7 days का पैकेज वगैरह लेते हो, सो यू हैव मेडिटेशन सेशंस जहाँ पे आपको आपका वो कुंडलिनी चक्रा जो होता है, द चक्रा थेरेपीज एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद योगा, तो वो सारा कंबाइन करके एक साथ अलग अलग ये होते हैं, दोज आर रिजुविनेशन एंड हीलिंग पैकेजेस दैट दोज पीपल हैव। कुंजल में क्या होता है कि मतलब मैंने तो नहीं करा बट मेरी मम्मा ने करवाया था, तो मैं बहुत छोटी थी तब मैं केरला गई थी, तो आई डोंट लिटरली रिमेम्बर कि केरला कैसा है, बिकॉज मैं आई हैवंट विजिटेड व्हेन आई वाज ग्रोन अप। तो मम्मा ने करवाया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उसमें वो क्या करते हैं, दे बेसिकली क्लीन योर इंटरनल, मतलब पूरा इंटरनल क्लींजिंग होता है उसमें। सो व्हाट दे डू इज दे मेक यू ड्रिंक समथिंग एंड यू हैव टू puke. So you have to throw up everything that's there. This is a penguin. Is your internet working? I think कुछ network problem आ रहा है. हाँ नेटवर्क का इशू है। Hi Hemraj. This is a penguin. क्या बोल रहे, झूठ बोले कौवा काटे. Okay. Yes, I was telling you about the therapy, but yeah, केरला का तो हमारा भी प्लान बन रहा था ट्रिप का, but unfortunately नहीं हो अगर पाया. कोविड के केरला कारण. में केरला में एक बात और है कि काफी अच्छे बीचेस भी है केरला में। देयर इज इन नॉर्थ केरला देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज बेकाल। बेकाल. हाँ केरला जब आप कोस्टल रूट से या ट्रेन से केरला एंटर करते हो, द मींस द फर्स्ट बिग स्टेशन इन केरला इज कासरगोड। Okay. सो कासरगोड सिटी से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे देयर इज दिस बीच कॉल्ड एज बेकाल, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन साउथ इंडिया, बेकाल। और एक और अच्छी बात ऐसा है कि बेकाल बीच पे ही ऊपर के साइड में एक बहुत अच्छा फोर्ट भी है, दैट इज कॉल्ड एज बेकाल फोर्ट। सो इट इज वन ऑफ द यू कैन से फैंटास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेसेस अलोंग द कोस्ट। बेकाल फोर्ट हैज उसका बहुत सारा बैटल्स जो है उसमें भी बेकाल फोर्ट ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। देयर इज लॉट ऑफ हिस्ट्री आल्सो, सो इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट। इट हैज स्टनिंग व्यूज। आप अगर गूगल करोगे कि बेकाल फोर्ट एंड बेकाल बीच, इट वाज रियली नाइस। Somebody has mentioned Kasargod is a part of It Karnataka. was a part of Karnataka previously during basically British times. Okay. Okay. So later it became part of Kerala. It part of Kerala. Even when there was a naval battle between the Marakkars and the British, Bekal was an important, very important destination. Okay. So It what was was a so very strategic popular point. about Bekal? The beach, the stretch of the beach is one of the most fantastic stretches of beaches in South India, basically. Means if you ask me, Bekal, I would say that Bekal is one of the most beautiful beaches in Kerala. There are other beaches too, but Bekal का beauty मुझे अच्छा लगा. I have visited almost all major beaches in Kerala, but I found Bekal as the best. Rain. Yeah, right, Prem. Rani Abbaka ruled it. She was from Ullal. Abbaka was the queen of Ullal. Okay. She also fought with the British basically the British and the Portuguese. Yeah, and the Marakkars helped her in that. Is he from Kerala? He No, knows it. he is from South Coastal Karnataka. Okay. He He's had saying come. I He know there. Yeah. No, he when we started a hostel, in fact, he was a part of the group, which was the first group that came to our hostel. He was a part of that group. He's a biker. Okay. He also does a bit of bike stunts and everything. So there was this, I can say, event called as Royal Enfield Rider Mania. So the group had come there, and just to tell you a thing, the group leader, his name was Aditya. Okay, he actually had come down to our property yesterday. He stayed here for a night. He was going to stay till tomorrow, but there was some medical emergency in his family, so he had to leave urgently today afternoon. So नींद से उसको फोन आया, नींद से उठ के तुरंत उसको निकलना पड़ा. Basically, so he had actually come here to relax for around 2 to 3 days yesterday. So this Marakal is a fishing community. absolutely right, absolutely right.
like the Kolis which are there in Maharashtra, the Koli crowd. Okay. So this is how basically it is. So it's a nice place. Secondly, आगे अगर जाते हो तो केरला में एक और बीच बहुत अच्छा है जिसको मैं ये करूंगा. The name of the beach is called as Chavakkad. Chavakkad. Okay. चवाक्कड़. गुरुवायूर नाम का एक बहुत यू कैन से पॉपुलर डेस्टिनेशन है केरला में. इट्स अ पॉपुलर पिलग्रिम डेस्टिनेशन इन केरला. इट हैज अ ब्यूटीफुल लॉर्ड कृष्णा टेम्पल इन गुरुवायूर. इट इज अ वेरी पॉपुलर पिलग्रिम डेस्टिनेशन इन केरला, गुरुवायूर. सो गुरुवायूर से 6 किलोमीटर पे बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है. इट्स कॉल्ड एज चवाक्कड़. इट इज मीन्स लोकल क्राउड वहां पे ज्यादा जाता है. नॉट मेनी टूरिस्ट नो अबाउट इट. बहुत कम टूरिस्ट लोगों को उसके बारे में मालूम है वो टाइम पे. देन देयर इज अनदर बीच कॉल्ड एज कप्पाड. इट हैज major historical importance because Kappad is on the outskirts of a place called as Kozhikode or Calicut as it is popularly known. So Kappad का importance जैसा कि वास्को ड गामा landed first in Kappad. अच्छा, मतलब इंडिया में या Yep. केरला में? There is a Vasco memorial in Kappad also. Okay. Yeah. So when he came to India, he came to Kerala first. You'll have to speak up again. The video has hang. Acha, there is some network problem, I think. So I हाँ, was asking, when Vasco da Gama came to India, did he came to Kerala first? This place which you are Yes, right. He came to Kerala first. He landed at Kappad. Okay, and at Kappad, the rulers around that particular area, the Samutris. They are actually locally called the Samutris and Europeans and our textbooks call them the Zamorins. They are called as the Zamorins. So local language are called the Samutris. Samutris means Samudra. Samudra is the sea and those people rule around the sea. So they are called as the Samutris. Acha. So the Europeans called them the Zamorins. So they were the rulers of that particular Calicut state at that point of time. They sent him back, first Kerala, later Goa. Who sent him? No, the Samutris basically they welcomed him. Then they had some issues regarding Vasco's brother-in-law, then the brother of the Zamorin king and all that. There's a lot of history behind it. Acha. So, You have very good knowledge of history. I know nothing. so no, can't. No, I'm not getting more into it because वो थोड़ा सा time में नहीं खत्म होगा. So it's sort of things. But then again, उसके बाद में आप नीचे जाते हो तो कोची में भी काफी अच्छा जगह है. There are two areas in Kochi. One is Ernakulam and one is Fort Kochi. Ernakulam is a new town जहाँ पे रेलवे स्टेशन वगैरह है. And Fort Kochi basically is a old town of Cochin. Okay. So you have to cross a bridge and then नहीं भाई प्रेम इतना नहीं हुआ. I'm not an encyclopedia or sort. I थोड़ा बहुत knowledge है. So आप ब्रिज क्रॉस करके फोर्ट कोची में जाते हो. फोर्ट कोची इज लाइक एन आइलैंड काइंड ऑफ सॉर्ट. ऐसा है. फोर्ट कोची इज लाइक एन आइलैंड काइंड ऑफ सॉर्ट. देयर इज आल्सो फेरी फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम एर्नाकुलम टू फोर्ट कोची. और there are 2-3 islands that are joined. Wellington Island, Mattancherry and Fort Kochi. These are joined internally. और वो रिवर के उस पार है. Okay. So Fort Kochi is the main place जहाँ पे कोचिन का साइट सीइंग होता है. Okay. So it has a nice. एक जगह वहाँ पे देखने के लिए मेंशन करूंगा. There is this place called as the Mattancherry Palace, और it is also called as the Dutch Palace. वहाँ पे क्या है? वहां पे वो पैलेस जो था वो डच लोगों ने वहां के लोकल रूलर को बिल्ड करके दिया था और वो एरिया में उस पैलेस को अभी म्यूजियम में कन्वर्ट कराया गया है. अच्छा. एंड आपको केरला का अगर प्रॉपर पिछले राउंड अबाउट एक 700-800 साल का हिस्ट्री चाहिए तो इट हैज अ लॉट ऑफ पिक्टोरियल पेंटिंग्स एंड यू कैन से फोटोज एंड काफी सारा इंफॉर्मेटिव वहां पे ये भी बनाए हुए प्लैक्स भी बनाए हुए हैं वहां पे जहाँ पे बहुत अच्छा आप ये देख सकते हो. अच्छा. सेकेंडली वहां पे एक और चीज है. वो जो पैलेस का जो पूरा बाहर का एरिया है वहां पे एक टेम्पल है. ओके, दैट टेम्पल वहां पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा है. ओनली हिंदूज कैन एंटर द टेम्पल.
No other people. केरला इज ऑसम। केरला में Yeah. क्या है, केरला में मोस्टली नॉन वेज है, मैंने सुना है ज्यादा। नहीं 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 नहीं, केरला, द लोकल फूड्स, वन इज द इडियप्पम, appam, idiyappam and putta. These are the three things that are very famous and they are served with अपना जो काला चना होता है छोटा, तो उसका करी बनाते हैं, that is called as a kadala curry. अच्छा। इट इज कॉल्ड एज ए कडला करी. सो कडला करी के साथ में ये तीन चीजें हैं, अप्पम, इडियप्पम एंड पुट्टा. बेसिकली पुट्टा जो होता है वो राइस टाइप का होता है और वो बाम्बू के अंदर कुक किया जाता है. इट इज कुक्ड इनसाइड द बाम्बू, जो पुट्टा होता है वो. प्लस बेसिकली सो ये तीन है. प्लस यू ऑल्सो फिश इज वेरी फेमस इन केरला. सो फोर्ट कोची में आप चाइनीज फिशिंग नेट्स नाम का एक एरिया है, तो वहां से आप फ्रेश फिश खरीद सकते हो. And there are you can say food stalls there nearby, so you can pay them you can say 180 or 200 bucks and get your fish cooked for you. So काफी लोग वैसे करते हैं, they get fresh fish from the catch and they give it there. कडाला। Kadala curry. अच्छा। It is called as kadala curry. ओके। Putta. The pronunciation is putta. Appam, motta curry. Appam, motta curry, idiyappam, kadala curry. So there are a lot of places behind. It's nice. And Tasting all foods from Kerala. Idiyappam. Yeah. Puttu Yeah. is rice powder, grated coconut and Coconut. salt. steamed inside a bamboo. Hmm. Steamed inside a bamboo. Then they cut the bamboo और वो पूरा ये करते हैं. Puttu kadala curry. Cheru pyara curry. Cherupayar curry. Okay. What So is that? lots and lots of things. वहाँ पे जब there is this parota which is famous. They call it porota, and it is basically called as a Malabar porota. Okay. It's a paratha. Basically, it's a normal मैदे का आटे का पराठा होता है, but they do it in a very it's basically has 2-3 layers into it. So it is really nice. आपको नॉर्थ इंडिया में जैसा कुलचा मिलता है बेसिकली लेयर्ड, तो उस टाइप का वो परोठा होता है. तो इट इज कॉल्ड एज परोटा. अच्छा पराठा। नहीं, नॉट लच्छा पराठा. इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पराठा कॉल्ड मलाबार परोटा. अच्छा। If you have basically a supermarket nearby, you can walk into the supermarket. There's this company called as ID. So they have this frozen Malabar parotas. So you get it in Delhi. So आप कभी जाओगे, Stew. veg stew, absolutely. Add egg to it. So काफी सारे चीजें हैं वहाँ पे लोकल बेस्ड और बहुत अच्छी है. There are lots and lots of small local joints also that can be done. That can be visited. जो जाता है तो या आई ऑल्सो विजिट देम. अगर कोई जाता है तो मुझसे पूछता है तो मैं काफी लोगों को एडवाइस भी करता हूँ कि अगर फोर्ट कोची में हो तो यहाँ लोकल जॉइंट पे जाओ, एर्नाकुलम में हो तो इस लोकल जॉइंट में जाओ, मुन्नार में हो तो यहाँ पे जाओ. एंड देयर इज दिस चेन, ओके, देयर इज दिस चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स कॉल्ड एज सरवना भवन. वो तो यार सब जगह है, वो तो मतलब इंडिया के बाहर भी फेमस है। हाँ, इंडिया के बाहर भी फेमस है, लेकिन एक बात बोलता हूं मैं, केरला में देयर इज अ चेन कॉल्ड एज सरवना भवन, बट देयर आर एटलीस्ट 100 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स कॉल्ड एज सरवना भवन बैंकिंग ऑन द चेन. सो दे आर नो वे लिंक टू द चेन. ओरिजिनल वो तो उसके लोगों से पता चल जाता है कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं है। हेलो, दैट्स इन चेन्नई। व्हाट इज ही सेइंग? सरवना भवन. सरवना भवन इज एवरीवेयर यार। मैं तो मतलब मैंने तो यूरोप में हमको जैसे इंडिया का कुछ खाने का मन रहा तो सरवना भवन मिल जाता है। सरवना भवन, यप एवरीवेयर यू यप. कैन फाइंड। केरला में एक और चीज है, लिकर. इफ यू आर गोइंग टू केरला, कैरी योर ओन लिकर. Oh, you can't find liquor there? Nah, there are very few liquor shops. For example, in the whole of Ernakulam and Kochi, there are only 4 to 5 liquor shops. That too, they are government shops. So आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता, मीन्स आई हैव सीन पीपल व्हाइल गोइंग टू मुन्नार, एक लिकर शॉप था, तो मैंने एक्चुअली देखा था कि वहां पे एटलीस्ट 100 लोग लाइन में खड़े थे बाहर. 100 लोग लाइन में बाहर खड़े थे लिकर लेने के लिए. They got a branch in New York. क्या यार न्यूयॉर्क मतलब सरवना भवन तो इंडिया में सरवना भवन चेन है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सरवना भवन चेन है,
लेकिन कैसा है, सागना भवन पे कुछ केस भी हो गया था, आई हैव हर्ड। अरे कैसा है मैं बोलता हूँ, सरवना भवन चेन है, सो देर बट देर आर एटलीस्ट अनदर 100 सरवना भवन इन केरला विच आर नॉट लिंक टू द चेन. उन्होंने नाम सरवना भवन रख दिया है बिकॉज सरवना भवन इज अ वेरी जनरलाइज नेम देयर. कप्पा मीन करी। Okay. So why is Kerala called God's own country? मतलब उसको Because of the sites that, because of the sites that it has, beautiful sites in Kerala. Okay, so अगर जैसा मैंने बोला कि you see one of the fantastic sunsets on the west coast in Kerala, ये एक बात. आपको काफी अच्छे हिल स्टेशन मिलेंगे. वायनाड इज अ फैंटास्टिक हिल स्टेशन. ओके, लिमिटेड लोग जाते हैं वहां पे, बहुत गर्दी नहीं होता है. दिस इज वन थिंग, सो इट्स रियली फैंटास्टिक. वायनाड इज अ, अगर किसी को 1 वीक का ट्रिप प्लान, सपोज मुझे 1 वीक के हाँ. लिए केरला जाना है, मुझे 1 वीक हाँ. का ट्रिप प्लान करना है, तो व्हाट ऑल हाँ. प्लेसेस यू सजेस्ट मी टू see there are, Kerala can be divided into 3 parts. One is North Kerala, one is Central Kerala and one is South Kerala. So अगर नॉर्थ केरला में जाना है आपको, तो नॉर्थ केरला में you can do Bekal, you can do Kozhikode and Wayanad. These are the 3 places that you can, mainstream places है जहां पे आप जा सकते हो. ओके, फिर उसके बाद में अगर आपको सेंट्रल केरला में जाना है, तो आपको रिलैक्सिंग या नॉर्मल लीजर डेस्टिनेशंस है, तो यू हैव कोची, यू हैव मुन्नार, यू हैव थेक्केडी एंड यू हैव आलेप्पी. ये 4 डेस्टिनेशन जनरली 7 दिन में लोग कवर करते हैं. फिर आता है साउथ केरला. साउथ, एप्पी एंड थेक्केडी, यस, दीज आर कवर्ड. और कोची डेस्टिनेशन जो 7 डेज में कवर कर सकते हैं, कवर कर लेते हैं. नॉर्थ केरला नहीं, सेंट्रल केरला, सेंट्रल केरला. अच्छा, तो आई और थिंक तो डायरेक्ट फ्लाइट लेके जैसे कोची आप चले गए, हाँ, फिर वहां काफी लोग वैसा ही करते हैं. दे डू अ सर्कल ट्रिप. कोची पे फ्लाइट, कोची फ्लाइट से कोची में जाते हैं, या एर्नाकुलम ट्रेन से जाते हैं. वहां से पहले मुनार जाते हैं, मुनार से फिर थेक्केडी जाते हैं, थेक्केडी से आलेप्पी आते हैं, और आलेप्पी से वापस कोची आते हैं. तो ऐसा सर्कल ट्रिप काफी लोग करते हैं. और जिनको उसके साथ में साउथ केरला भी करना है या कन्याकुमारी भी करना है, सो दे गो टू त्रिवेंद्रम. फ्रॉम त्रिवेंद्रम either if they want to stay in Kanyakumari, so त्रिवेंद्रम जाके कन्याकुमारी स्टे करते हैं, और नहीं तो एक दिन में भी कन्याकुमारी करके आते हैं. हेलो संजय. तो त्रिवेंद्रम में ये करके आते हैं, त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी करके आते हैं. त्रिवेंद्रम इज बेसिकली अ ब्रिटिश गिवन नेम. द ओरिजिनल नेम इज तिरुवनंतपुरम. तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला. वो तो पता ही है सबको, बट वो एकदम ऐसे नीचे जाके है ना, डॉट. हाँ हाँ, एंड इट इज फेमस फॉर द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड. हाँ, वहां पे बहुत गोल्ड है बहुत. हाँ हाँ, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल. सो दैट इज रियली नाइस. त्रिवेंद्रम इज अ नाइस सिटी. त्रिवेंद्रपुरम. केरला किसी को कवर करना होगा, मतलब पूरा केरला अगर मुझे देखना है, तो कितना टाइम लग जाएगा? मेन स्ट्रीम डेस्टिनेशंस अगर आपको देखने हैं सारे, तो एटलीस्ट 20 to 25 डेज आपके पास में चाहिए, नॉर्थ से लेके साउथ कवर करने के लिए. मीन्स यू स्टार्ट, आई जस्ट रिकैप देम. कासरगोड, बेकाल, देन यू हैव कोझिकोडे, कप्पाड, देन यू हैव दिस वन वायनाड, देन यू हैव पलक्कड, इट्स अ कल्चरल डेस्टिनेशन. देन यू हैव गुरुवायूर, देन देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज त्रिचूर. देन देन यू हैव कोची, मुन्नार, थेक्केडी, आलेप्पी, तिरुवनंतपुरम, एंड अगर गए ही हो तो कन्याकुमारी भी करके आओ. सो ये मेन स्ट्रीम पूरा सब कवर करना है, तो 20 से 25 दिन आपको चाहिए आपके साथ. देयर आर 2 थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू टेल. 2 चीजें कुछ अलग, मेन स्ट्रीम में रह के भी अगर कुछ अलग देखना है तो 2 चीजें हैं. त्रिचूर में हर साल अराउंड अबाउट इन द मंथ ऑफ मींस लेट मार्च और अर्ली अप्रैल में एक वहां पे फेस्टिवल होता है. इट इज कॉल्ड एज अ त्रिचूरपुरम. वहां पे एलिफेंट्स होते हैं. एलिफेंट्स आर स्टडेड विद गोल्ड. हर एक एलिफेंट पे मिनिमम 2-2, 3-3 करोड़ का गोल्ड उन लोग एलिफेंट को डेकोरेट करते हैं उससे. ड्रम्स बजाते, काफी इट इज अ स्पेक्टेकल टू वॉच. तो वो एक त्रिचूरपुरम नाम का फेस्टिवल है. पीपल शुड विजिट दैट. तो ये एक मैं बोलूंगा. और दूसरा, कुछ अलग मेन स्ट्रीम में रह के कुछ अलग देखना है तो केरला में बोट रेसेस होते हैं. बोट रेसेस, you have boat races in Kerala that are called as the Vallam Kalli. Vallam Kalli means boat race. Okay. And it is basically the largest team event in the world.
also noted in the Guinness Book of World Records. एटलीस्ट 100 to 200 रोवर्स रहते हैं और वो स्नेक बोट्स होते हैं, उनको रो करते हैं, तो उसका रेस लगता है वहां पे, snake boat races. So there are actually 5 to 6 snake boat races that happen there during the monsoon season. But तीन है वो सबसे बड़ी है. One is Champakulam Mulam. It happens somewhere around about in June, July. One is Aranamula. That happens during September. And one is Nehru Trophy race. Generally happens in August, लेकिन कभी कभी वो November या December में भी हो जाता है. ऐसा. These are 3 biggest races. So what is the best time to visit Kerala? मतलब जैसे हर place का एक best time होता है, तो Kerala according to me, October to March is the best time to visit Kerala. अच्छा. October to March is the best time to visit Kerala. And अगर आपको rainforest पसंद है, if you like the concept called as rainforest, then monsoons are the best time to visit Kerala. केरला में एक बहुत बढ़िया वाटरफॉल है, उसको अथिरपिल्ली वाटरफॉल बोलते हैं. बाहुबली में रिसेंटली दिखाया गया था वो. अच्छा. लॉट ऑफ हिंदी एंड साउथ इंडियन मूवीज आर शॉट ऑन एट द बेस ऑफ अथिरपिल्ली वाटरफॉल. Nice. So, nice. Yep. If you have to go to Kerala, मतलब 7 days में आप सेंट्रल एरिया कवर कर सकते हो. हाँ, या नॉर्दर्न एरिया. पूरा देखना है लाइक पूरा केरला, so you have to have like 3 weeks. time. Perfect. So you know so much about Kerala, यार. मतलब there's so much to visit, and when I see videos और ये सब, telling that Kerala is God's own country. It's famous for backwaters, houseboat, and lot of dishes, lot of South Indian dishes made with coconut as well, and for of course the massage and therapies, Ayurvedic massage, healing, and lot of therapies it's famous for. And like Mayur just mentioned, कि वहाँ पे if you are expecting liquor, so you might not find it very easily. So carry your own, or before you have planned to visit to places, buy a liquor from the liquor shop. पहले से ही अपना जुगाड़ खुद कर लो और साथ में लेके चलो. और I think कुछ connection issue हो रहा है. There is some problem with the connection. Yes. So it was an unplanned session about Kerala, but lot of things we got to know about Kerala. और मैं गई थी केरला जब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बहुत कुछ याद नहीं है केरला के बारे में, बहुत कुछ पता नहीं है. But I'm planning my trip to Kerala very soon, और let's see ये कोविड सब एक बार थोड़ा सा sort out हो जाए, उसके बाद I'll plan a trip, and I'm definitely going to take good time, मतलब 2-3 weeks का time, and I'll visit all the places, and it is so beautiful. On this note, guys, I am going to end this live session, and yeah, let me know which other place you would like to hear about, or next time I'll come with that place, और हम दूसरी जगह के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे क्या क्या फेमस है, वहाँ के क्या क्या फूड्स हैं, वहाँ पे क्या क्या प्लेसेस हैं, और क्या कल्चर है, क्या फेस्टिवल्स हैं. So we'll talk about that place next time. So yeah, thank you for joining. Till then, bye bye.